everybody, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. So guys, today we are going to deal with another chapter from grade 8 science, that is cell structure and functions. Okay, so this is a very important chapter. सबसे पहले तो important क्यों है chapter? Do you guys know it? That ये chapter के अंदर जो कि जितने भी points हैं, they are all very important because वो आपके basis बनाएंगे for the नाइन्थ एंड टेंथ ग्रेड। नाइन्थ ग्रेड में आपको सेम चैप्टर आएगा विद डिफरेंट नेम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आप और भी ज़्यादा सीखोगे। अभी तो आपने बस एकदम बेसिक्स ही क्लियर किए हैं, उसमें आप और ज़्यादा सीखोगे। फिर जब आप टेंथ में जाओगे फिर एक चैप्टर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, तब भी आपको पढ़ना। और अगर बायो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। और अगर इस वीडियो को देख के अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप नाइन्थ और टेंथ के जो साइंस है ना, बायो के सेल के रिलेटेड, उसको क्रैक कर लोगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नाउ गाइस, बिफोर बिगिनिंग लेट मी टॉक अबाउट द लर्निंग स्ट्रैटेजी ऑन ज्योति लर्न्स। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्प्रिंट सेशंस अपलोड कर रहे हैं 6 to 8 साइंस के लिए। We provide you guys with doubt solving form. I provide you guys with doubt solving form, in the description of each video. I make doubt solving videos. आप मेरा doubt solving videos भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने आई बटन में डाल दिया होगा तो you guys can just view it, ठीक है। So I also make a lot of doubt solving videos ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाए, as well as suggestion form is in the description so that you guys can interact with me personally and you can talk to me, you can suggest me regarding my teaching, as well as you can get videos of your choice. So for that is the suggestion form. Now session PDF in the form of notes. So I give session PDFs as well, that is in the form of notes. Why do you know? Because session PDFs are very important. Session PDFs are very important. They are going to help you to analyze the everything in just a go. They are going to help you to revise everything, and they are just as what we say notes, ठीक है। They are just as what we say notes. And also I have provided the test of this chapter in the description, so please do check the link of the test, because if you attempt the test then of course it will be beneficial for you guys only. You can just check out your preparations after watching the entire session. Please do it because it is going to help you a lot, okay? And of course we conduct termly quizzes. We discuss important questions, key points, and of course I provide you with assignments as well. Now guys, before beginning, all about me, who am I, what am I? So my name is Jyoti, and for those who do not know, I believe at a small age you can do what you want, and I'm 14 years old. I love maths and science, and teaching is my passion. I'm passionate about this a lot, and I want to grow my Smart YouTube family to 1000 subscribers. So can you guys help me out to do that? Can you guys help me out? I want that, okay? So please do not ignore this. I want 1000 subscribers on my channel. Now introduction and the discovery of cell. So first of all, ये cell का introduction. What exactly cell होता क्या है? तो देखो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारी जो बॉडी है, we are known as organisms. हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? organisms, ठीक है, organisms. हम लोग organisms के नाम से क्यों जाने जाते हैं? organisms में कहीं ना कहीं एक वर्ड organ आता है। ऑर्गन मतलब जो बॉडी ऑर्गन्स हो गए आपके अंदर, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज है, बहुत सारे किडनीज हैं, ये सारे आपके ऑर्गन्स हो गए। और ऑर्गन्स से बने हैं जो लोग, उनको बोला जाता है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो लोग ऑर्गन्स से बने। अब बात आती है कि ऑर्गन किस चीज़ों से बने, व्हाट आर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ? सो ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से। अब टिश्यूज क्या है? टिश्यूज एक लार्ज ग्रुप है सेल्स के। टिश्यूज एक लार्ज ग्रुप होते हैं सेल्स के। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे सेल्स हैं, छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो एक साथ मिल गए और उन्होंने एक टिश्यू बना दिया। और ये जो टिश्यू है, ये ढेर सारे, ये जो एक टिश्यू है उसने मिलके ऑर्गन बनाया, और ये जो ऑर्गन है उसने मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ये जो ऑर्गन सिस्टम है उसने मिलके हमारी बॉडी को बनाया है। सो दिस इज हाउ वी आर मेड एंड दिस इज व्हाई वी आर नोन एज ऑर्गेनिजम्स। अब टिश्यूज से भी छोटे हुए आपके सेल्स। अब सेल्स क्या होता है? सो सेल्स आपके बहुत बेसिक चीज़ें होते हैं, बिकॉज आपकी जो बॉडी है ना, वो उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। यू कैन नॉट इवन इमेजिन द नंबर ऑफ सेल्स, और आप सेल्स को अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इवन आई कैन नॉट व्यू इट, ओके, दो आई हैव स्पैक्स ऑन माई आईज, आई कैन नॉट व्यू दिस सेल्स। आई नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर व्यूइंग इट, ठीक है। आपने अनियन सेल्स का भी देखा, हैव यू गाइस एवर ऑब्जर्व्ड द अनियन सेल? उसमें ना ऐसे छोटे छोटे कुछ इस तरह से ढेर सारे पार्टीशंस होते हैं,
वो सारे जो होते हैं वो अनियन टिश्यू होता है, उसमें एक यूनिट को बोला जाता है आपका सेल, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू सेल। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद दिस। अब चलिए थियोरेटिकल जाते हैं। ये तो मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू बाय माई सेल्फ, ओके। Now, cell is the basic and the structural function of all living organisms. Cell can be very large, ठीक है, cell can be very large as cell is as small as a microbe. बहुत बड़ा भी हो सकता है सेल, बहुत छोटा भी हो सकता है माइक्रोब जितना। माइक्रोब मीन्स those organisms whom we cannot see with our naked eyes, okay. So of course cells are like microbes. Most of the cells are like microbes. but बड़े cells की बात करें तो what are the cells, ऐसे बड़े cells क्या होते हैं जिनको हम देख सकते हैं? Of course, there are some cells which you can actually view with your eyes, and that is an ostrich egg, ठीक है। Ostrich egg, वो egg तो है but वो एक cell है, do you know? Ostrich egg is a cell. तो ostrich egg एक cell है और दुनिया का सबसे बड़ा cell है. It's the largest cell in the world. And हमारे जो body है, the human body that we have, okay, this is my human body, that will be your human body that you have, has the smallest cell. The smallest cell, that is your sperm, ठीक है, that is your sperm. Now guys, the cell was first observed by Robert Hooke. किसने देखा सेल, किसने की इसकी डिस्कवरी? क्योंकि इन्वेंशन तो हो नहीं सकता, ऑफ कोर्स डिस्कवरी ही होगी, ठीक है, तो क्योंकि इन्वेंशन तो हो नहीं सकता, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक किसी क्लेवर व्यक्ति ने ये किया. He had observed for the very first time cock cells, ठीक है. कॉक सेल्स उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था. कॉक सेल्स जैसे ही उन्होंने ऑब्जर्व किया, इट वाज लाइक हनी, यू नो, हनी ड्यू, यू नो गाइस, और एग्जैक्टली इज हनी ड्यू. कुछ इस तरह से यू नो ढेर सारे इस तरह से पूरे मिक्स है, कुछ इस तरह से. और आपने हनी ड्यू देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा. तो उस हनी ड्यू जैसा था उस सेल का, यू नो, उस सेल का स्ट्रक्चर. और वो जो सेल्स उन्होंने देखे वो कौन से सेल्स? तो डू यू गाइस नो, वो डेड सेल्स है, क्योंकि कॉक सेल्स डेड होते हैं, ठीक है. प्लांट्स के ज़्यादातर सेल्स डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, बट स्टिल दे आर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिकॉज मरे हुए क्यों होते हैं? ताकि वो हार्ड रहे, है ना, ताकि वो हार्ड रहे, क्योंकि द सेल्स विच आर लिविंग दे आर नॉट दैट हार्ड, एंड प्लांट्स नीड सम सपोर्ट सो दैट यू नो, so that they can stay. Now he has observed the cock cells which were dead and which looked like honeydew, which had a structure of honeydew. Okay guys, clear with this? Now there are organisms तो होते हैं, but organisms के भी two types होते हैं. There are two types of organisms. Very first thing is multicellular and unicellular. Multicellular organisms are those organisms which have a lot of cells. Number of cells we cannot even say. If there is even two cells, अगर दो सेल भी हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म में, दैट विल बी अ मल्टीसेल्युलर, बिकॉज एटलीस्ट इट हैज टू सेल्स, ओके. एंड इफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज only one cell, so that will be not a multicellular, but that will be a unicellular organism. Unicellular means means one unit, ठीक है. Cellular means made up of cells. So वो the organism, वो you know organism that is just made up of one cell, that are known as unicellular. And those organisms who are made up of multiple number of cells, those are you know multicellular organisms. Now here are the examples of multicellular organisms, like our human, ठीक है. This is we human that are made of cells. हम लोग humans बने हैं किससे? Organ system से. What are we humans made up of, guys? We are made up of our organ system. Organ system बने हैं डिफरेंट ऑर्गन से. डिफरेंट ऑर्गन्स बने हैं आपके टिश्यूज से, और टिश्यूज बने हैं आपके एक सेल्स से, ठीक है. तो सेल एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक चीज़ है. सेल्स किससे बने हैं अब आप पूछोगे? सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जो कि हो गया आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लस सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेलास एज वेल, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलास. Now unicellular organisms से बात करते हैं. Let's talk to unicellular organisms. So the unicellular organisms has only one cell. For example, paramecium, ठीक है, this has only one cell. Now amoeba has a very indefinite shape. It has a very irregular shape, okay, and it also has a false feet, ठीक है. false feet के बारे में आपको पता होगा, pseudopodia, ठीक है, pseudopodia. ये उसका false feet होता है. It helps it to move and कैप्चर फूड, ओके. एंड ये है बैक्टीरिया हैज ओनली वन सेल, एंड ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक क्या है आगे हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं. एंड ये आपका ईस्ट है. ईस्ट आपका क्या होता है? ईस्ट आपका एक
ठीक है, बैक्टीरिया है बेसिकली, सॉरी ईस्ट इज अ फंगस, ठीक है। आपका जो ईस्ट है ना, ईस्ट इज अ फंगस, ठीक है, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स अ फंगस। एंड ये आपको हेल्प करता है फर्मेंटेशन में, अल्कोहल प्रोडक्शन में, ठीक है। तो आपका ईस्ट भी एक ही सेल से बना है, उसमें ज़्यादा सेल्स है नहीं। ईस्ट इज ऑल्सो एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओके। इट्स ऑफ कोर्स लिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑफ कोर्स लिविंग। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ सेल्स? सेल की साइज क्या होती है? I know I have said you of course that they are very small. They are very small. But does the size of the cell depend on how the body is? Means, for example, यहाँ पे देखो, यहाँ पे I have a man with me. Let's call a man, and here I got his name is, what should we keep his name? Let's keep his name as, okay, Ram. Fine. Let's keep his name as Ram. And here I have a प्यारा सा एलिफेंट, अ वेरी क्यूट एलिफेंट, ठीक है। एंड हिज नेम इज एलिफेंटो, हिज नेम इज एलिफेंटो। आई विल राइट इट हियर, एलिफेंटो, एलिफेंटो, ठीक है। अ नाइस नेम फॉर एलिफेंट, है ना। अब एलिफेंटो इज वेरी लार्ज, बट देन राम इज स्मॉलर कंपेरेटिवली। तो राम के पास ज़्यादा थोड़े छोटे सेल्स होंगे, लेकिन एलिफेंटो के पास थोड़े बड़े बड़े सेल्स होंगे। इज इट ट्रू? Is it true? Of course not, guys. The size of the cells never depends on the size of the body. The size of the cell never depends on the size of it or a living organism. It does not depends on it. एक एलिफेंट के सेल्स एक ह्यूमन सेल्स से ज़्यादा बड़े होंगे, इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट। एलिफेंटो के सेल्स जो है ना, वो राम के सेल्स जितने भी हो सकते हैं उससे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट के सेल्स बड़े होंगे राम के सेल्स से, बिकॉज एलिफेंट इज ऑल्सो बिग, नो। सो एलिफेंटो के जो सेल्स हैं मे बी वो राम के सेल्स जितने ही हो, बट ऑफ कोर्स ये तो क्लियर है कि सेल्स की जो साइज होती है वो डिपेंड नहीं करती है ऑर्गेनिज्म के साइज पे, है ना। क्लियर है ना। और एलिफेंटो और राम को वी हैव टू से देम थैंक यू बिकॉज दे हैव टॉट यू दिस, राइट। नाउ मूविंग ऑन, नाउ साइज तो हमने देख लिया, अब सेल का शेप क्या होता होगा? इज इट सर्कल, इज इट स्क्वायर और इज इट रेक्टेंगल? सो लेट मी टेल यू गाइस, द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन the function of the cell. Cell काम क्या कर रहा है? What is exactly its function? What function has it to process? अगर सेल को नर्वस सिस्टम में मैसेजेस पहुंचाने हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, लाइक अ शुगर कैन, है ना, लाइक अ शुगर कैन, इट हैज अ स्ट्रक्चर लाइक अ शुगर कैन, कुछ इस तरह से स्प्रेड होते हैं, है ना। आई शो यू, सो इट्स समथिंग स्प्रेड लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा आई नो माई ड्राइंग इज नॉट गुड एट ऑल, बट ऑफ कोर्स आई एम जस्ट शोइंग इट हाउ इट इज स्प्रेड, ठीक है। ऑफ कोर्स आई हैव पिक्चर्स फॉर दिस। अगर वो उसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, ये है आपके रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आपके आरबीसीज, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आपके आरबीसीज। आपके पास कितने बीसीज होते हैं ब्लड सेल्स? 2 ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ये आपके हो गए रेड ब्लड सेल्स। ये आपके कोलम्बर एपिथेलियल सेल्स, और ये वैसे अभी हम लोगों को पढ़ा नहीं है, बट ऑफ कोर्स दे डू एग्जिस्ट, ठीक है, दे डू एग्जिस्ट। नाउ ये आपके ओवम सेल। ओवम क्या होता है? ओवम होता है जो फीमेल बॉडी में जो एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन द फीमेल बॉडी द एग दैट इज प्रोड्यूस थ्रू the ovaries, that is known as ovum, ठीक है, that is known as ovum. And here you have the smooth nucleus cells, ठीक है, वो smooth nucleus cells. Now here you also have a sperm cell. Sperm is also a cell, ठीक है, एक sperm भी एक cell होता है। Here you have the bone cell, वो cell जो bone के होते हैं। And here you have the nerve cell. Can you guys see it? It certainly looks like a sugar cane, and on it has a omelette, right? So this is your nerve cell, ठीक है, that is your nerve cell. Here also I have, so this is the ovum that we have talked about, and this is the sperm cell, and this is the white blood cells, ठीक है। WBCs look something like this. Here you have the neurons. Neurons are your cells, nervous cells, ठीक है, nervous system cells. And here see you have the red blood cells and bone cells, ठीक है। तो शेप क्या होगा सेल्स का? वो डिपेंड करता है कि what is exactly its function. So the shape of the cell depends on the function of that particular cell, okay. और हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हैं। इसका मतलब their shapes are also different. The shapes different from one cell to another. एक तरह के similar alike cells they come and make up a tissue, ठीक है, make up a tissue. So a group of cells is known as tissue. तो cells में कितने कितने parts होते हैं? Okay, of course parts of cells पढ़ना है। तो सबसे ऊपर आप जो दिखते हो यहाँ पे I will show you guys.
सो हियर द पार्ट दैट यू कैन सी हियर, ओके, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, जिसकी बॉर्डर होती है ना सेल की, वो आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका साइड का वो जो बॉर्डर होता है ना, जो कवरिंग होती है जिसके अंदर सब कुछ है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कवरिंग, ये बाहर का कवरिंग हो गया, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आई हैव चॉकलेट्स here, तो मैंने इसके अंदर चॉकलेट डाल दिया. सो फॉर दिस चॉकलेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट अ चॉकलेट, दिस इज अ सेल. तो इस सेल के लिए ये मेरी जो बाहर की कवरिंग है, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. गोल्गी अपार्टस, जिसको गोल्गी बॉडीज भी बोला जाता है, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, वो आपके cell organella है. That is a cell organella and it has the function of Golgi apparatus is of packaging of products. ठीक है, then you have ribosomes here, ribosomes. So ribosomes are also a cell organella. तो जो rough endoplasmic reticulum होता है, RBCs और RBCs, दो एंडोप्लाज्म. लेट मी टेल यू गाइस, हमारी बॉडी के अंदर 2 ERs होते हैं. ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिमेंबर दिस, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 2 ER होते हैं, एक होता है आपका RER एंड दूसरा आपका होता है SER. RER का क्या मतलब होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER मीन्स दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज थोड़ा रफ है. ठीक है, थोड़ा रफ है मतलब उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं. एंड SER मतलब एकदम स्मूथ है, दैट इज कंप्लीटली स्मूथ, दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हमारे बॉडी के अंदर दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है और स्मूथ है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है टू इट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. द फंक्शन ऑफ RERs इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं. RERs आपके प्रोटीन्स, जो आपके अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, उनकी फॉर्मेशन आपकी RERs करते हैं. एंड SER, द फंक्शन ऑफ SER इज the synthesis of lipids like fats and oils. उसका जो synthesis होता है वो करते हैं आपके SER मतलब smooth endoplasmic reticulum. अब ये जो रेटिकुलम्स होते हैं, rough endoplasmic reticulum की बात करते हैं. तो rough endoplasmic reticulum क्या होता है? Do you know? In that surface area, for example, here I have a book. ठीक है, यहाँ पे I have a book. ये बुक है, इसके सरफेस पे एकदम स्मूथ सरफेस है. क्यों ये स्मूथ है? क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं. अगर मैंने कुछ इरेगुलरिटीज इसके सरफेस पे रख दी तो वो रफ हो जाएगा. तो क्या होती है इरेगुलरिटीज RER के? तो वो होती है आपके रिबोसोम्स. ठीक है, रिबोसोम्स जिनके बारे में अभी पढ़ रहे थे, वो होती है जो उसको रफ बनाती है, क्योंकि उसके सरफेस एरिया पे रिबोसोम्स होते हैं. और SER के सरफेस एरिया पे बिल्कुल रिबोसोम्स नहीं होते. ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, है ना. Then comes your cytoplasm. ये थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. वी आर गोइंग टू लर्न इट इन डिटेल एज है. अब ये लाइसोसोम्स आता है आर योर suicidal bags of cells. Suicidal bags of cells means those cells जो आपको सुसाइड करा रहे हो. क्या रीज़न है इसका? तो आप क्लास 9 के साइंस में पढ़ने वाले हो. वैसे लेट मी टेल यू दैट जो सेल होती है ना, इट रप्चर्स इट्स ओन सेल, इसीलिए इसको बोला जाता है suicidal bags of cell. और ऑफ कोर्स आप क्लास 9 में इसको डिटेल में पढ़ोगे, तो आई डू नॉट नीड टू स्पीक इट नाउ, रेदर यू विल गेट टू कंफ्यूज. ठीक है, अभी बस आपको इतना याद रखना है. माइटोकॉन्ड्रियन ये आपका होता है पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज ये करता है आपका ATP फॉर्मेशन. अब ATP फॉर्मेशन व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है यार, very important. Mitochondria are your powerhouse of cells. Now nucleus यहाँ पे होता है. न्यूक्लियस आपने केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में कभी पढ़ा है? हैव यू एवर स्टडीड अबाउट एटम्स इन केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में जब व्हेन यू स्टडी अबाउट एटम्स ना, इन एटम्स यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो आपको पता चलेगा कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना, वो एटम के न्यूक्लियस में होता है. अगर नहीं पढ़ा है तो ऑफ कोर्स डू नॉट गेट कंफ्यूज. ठीक है, सो अब अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपने ये भी जाना होगा कि वो न्यूक्लियस में होता है. अब वहाँ का न्यूक्लियस और यहाँ का न्यूक्लियस, इज इट सेम? तो नो, दैट न्यूक्लियस इज ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, दिस न्यूक्लियस इज ऑफ आवर सेल्स, वो हमारा है. वी आर लिविंग, वी आर हम लोगों के बारे में इसमें बात किया है. सो यू हैव न्यूक्लियस एंड उसके आजू बाजू आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है. यू ऑल्सो हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये आपका न्यूक्लियोलस. ठीक है, उसके अंदर जो दिख रहा है दैट इज योर न्यूक्लियोलस. एंड विद दैट गाइज हियर ये जो दिख रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन सी हियर, आई एम मार्किंग इट. सो these structures are your centrioles. These structures are your centrioles. Clear with this guys? I hope you guys are clear with the parts of cells. Now let us begin reading it in theory. ठीक है, theory पढ़ना ज़रूरी है. So now सबसे पहले
प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज उसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता है. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या? सो वो होती है, ये मूवमेंट है through plasma membrane. Now plasma membrane is a selectively permeable membrane because वो डिसाइड करती है कि क्या चीज़ सेल के अंदर जाएगी, whether water has to enter inside cell or not, whether air has to enter inside cell or not. That is the we can say decision of plasma membrane because it has to decide that whether any object has to enter cell or not because it's selectively permeable, means it has to give permissions to everything. Okay, it's the outermost cover of cells which protects the cell. Now the cytoplasm and nucleus are enclosed with the cell membrane. The plasma membrane, that is also known as a cell membrane. Do not get confused, plasma membrane and cell membrane are completely same. Okay, plasma membrane, cell membrane, they are completely same, they are nothing different. And guys, the cytoplasm and nucleus are enclosed within them only. Cytoplasm, nucleus, what exactly are they? So cytoplasm is your jelly-like structure membrane that is present in your cell membrane, that present between the cell membrane and the nucleus. Cell membrane और nucleus के बीच में होता है. अभी आपने देखा, for example, let me show you guys this picture. ठीक है, now only I have shown you this picture, let me show it to you again. तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन है. इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपका आ गया साइटोप्लाज्म. सो दिस इज व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, दिस इज ओनली द व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. नाउ न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल. Nucleus is generally spherical and located in the center of the cell. Nucleus ज़्यादातर spherical shape में होता है, मतलब perfect circle we cannot say, but they are like spherical, like our earth, okay? And they are just present in the center of the cell. Center एकदम सेल के बीच में the nucleus is present, okay? And it acts as control center. वो आपकी सारी activities का control center होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आपके डैड है तो न्यूक्लियस आपकी मॉम हो जाती है. ओके, सो इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज के सेल को खेलना है या नहीं, सेल को कूदना है या नहीं, सेल को बाहर जाना है या नहीं, सेल को पढ़ना है या नहीं. ऑफ कोर्स दिस आर द एक्टिविटीज दैट वी ह्यूमंस डू, बट सेल की एक्टिविटीज थोड़ी हमारी से डिफरेंट होती है. दे डू नॉट हैव टू स्टडी, राइट? सो दे डू नॉट हैव टू स्टडी, नाइदर दे हैव टू प्ले. तो उनकी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल? हमारी एक्टिविटीज जैसे हमारी मॉम कंट्रोल करती है तो सेल की एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं. ठीक है, सो इट हैज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. उसके अंदर वो जेली लाइक स्ट्रक्चर नाम का जो आपका साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस के अंदर आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको होता है क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी बॉडी के अंदर 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं, बट ऑफ कोर्स आप चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में ये सीखने वाले हो. बट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो एक सेल का पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक अ थ्रेड. वो आपकी हेरिडेटरी में बहुत हेल्प करते हैं. सो आप जब जाते होगे तो मस्ट सम पीपल विल से, ओ माय गॉड, हर नोज इज लाइक हर मदर. Do you know her ears are like her father? Do you know her face is like her father? Do you know her lips are like her mother, her hair is like her mother. ऐसे बोलते होंगे ना लोग that she looks like her father, she looks like her mother. तो हमारे मम्मी पापा में और हम में क्यों इतनी सिमिलैरिटीज है? बिकॉज उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे, they have we can say they have helped us to get their characters inside our body when we were born. ठीक है, so they carry genes. वो genes carry करते हैं. मॉम डैड की genes हमारे बॉडी में होते हैं, that they the chromosomes carry. Okay, they carry those genes and then of course हम लोग अपनी मॉम डैड के offsprings है. So though we have genes of our mom as well as them, and that genes that we are talking here is not about the genes that you wear. Okay, it's totally different. Please don't take it as that. Now, nucleus is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane. अब न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म भी है. अब सेपरेट कैसे होते हैं? तो उनके पास भी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट, इन द सेम वे न्यूक्लियस आल्सो हैज अ न्यूक्लियर membrane. Okay, nucleus also has a nuclear membrane and it also has protoplasm. ठीक है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है. इंटायर कंटेंट जो लिविंग सेल का होता है दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म. पूरा का पूरा लिविंग सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म एंड इट इज लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल. ठीक है, एंड इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या आता है? अंदर आता है योर साइटोप्लाज्म एज वेल एज योर न्यूक्लियस इज इंक्लूडेड इन योर प्रोटोप्लाज्म. नाउ गाइस, लेट अस डील विद प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैक्टीरिया के बारे में व्हेन वी वर स्टडीइंग I had already talked about it. Now, what exactly are prokaryotic cells? Let us study them in detail. So this is a bacterial cell. ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल है.
सो हियर कैन यू सी दिस इज अ फ्लैजिलम, ठीक है, ये फ्लैजिलम है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है हियर और देयर इज आल्सो साइटोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूक्लियॉइड है। न्यूक्लियॉइड क्या होता है? आपका डीएनए, योर डीएनए, ओके। एंड हियर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आउटर कवरिंग, ओह गॉड, ठीक है, दिस इज द आउटर कवरिंग दैट इज है, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर कवरिंग आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। एंड गाइस लेट मी टेल यू, ये आपका पाइलस, देन कैप्सूल, देन यहाँ पे सेल वॉल है। हियर इज अ सेल वॉल। क्या आपने इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया देखा? हैव यू गाइस सीन इट इन इट? हैव यू सीन गोल्गी apparatus? हैव यू सीन chromosomes inside it? Nucleus is it? No, here is nucleoid. Nucleoid is totally different from nucleus, ठीक है, वो डीएनए होता है। Had you? No. So यही तो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स प्रिमिटिव सेल्स, वो सेल्स जो पुराने हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, हमारे दादा दादी जैसे, they've gone old, okay? So those are known as prokaryotic cells. अब prokaryotic cells, they are quite old, okay? They are your primitive cells. Prokaryotes मतलब primitive. They do not have well defined nucleus in them. उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है। They do not have well defined nucleus in them, and plus many cell organelles are absent in prokaryotic cells, ठीक है, many cell organelles are absent in prokaryotes. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। Now we will study about eukaryotes. Now name suggests that it will be totally opposite from prokaryotes, right? So of course अगर prokaryotes के पास they do not have well defined nucleus, then eukaryotes have well defined nucleus, ठीक है। If prokaryotes are they do not have cell organelles, means many cell organelles are absent in them. Here on the other hand, eukaryotic cells have all the cell organelles well defined, ठीक है। So here is a picture of a animal cell, ठीक है। Your animal cell, our cells, we are also animals. हम इंसान सबसे पहले बड़े जानवर होते हैं, right? So we are also animals. So this is our cell, okay? So here यहाँ पे आपके suicidal bags हैं जो कि आपका lysosomes है। I have already discussed with you guys this cell, but let me discuss it again so that we get everything clear in this chapter. यहाँ ribosomes है आपके, ठीक है। Here then you do not have to study this अभी, cilium अभी आपको नहीं पढ़ना है, it will be too much। यहाँ पे आपका जो cell membrane है ना वो है, ठीक है। this thing is your cell membrane, okay? This is your यहाँ पे आपका न्यूक्लियस जो इनसाइड होता है ना, वो न्यूक्लियस है और उसके ऊपर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हियर यू हैव गोल्गी apparatus. कैन यू गाइस सी? कुछ ऐसा सा जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपका गोल्गी apparatus का होता है। दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ योर गोल्गी apparatus. यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया, आपका यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड गाइस लेट मी टेल यू वेयर आर योर आरियार्स या हियर। सो गाइस हियर यहाँ पे जो इतनी जो चीज़ें होती है ना, न्यूक्लियोलस, ये सारी आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये सब पे ध्यान ना देके आप सिर्फ न्यूक्लियस पे ध्यान दो। सी गाइस हियर इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ब्लू दिख रहे हैं ना आपको, एटीपी के जो बनाते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। सब कुछ है यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ थे नहीं। तो ये डिफरेंस होता है एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट्स में। Now guys let us learn about some cell organelles. Now let us deal with some cell organelles. तो ये है आपका एनिमल सेल अगेन। सो सेल ऑर्गेनेलास में आपकी बात आती है सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूक्लियर के आजू बाजू जो एनवलप होता है, आजू बाजू मीन्स आस पास, ठीक है, उसके ऊपर जो एनवलप होता है दैट इज अ न्यूक्लियर एनवलप नोन एज या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन इनसाइड इज न्यूक्लियस के अंदर भी आपको न्यूक्लियस होता है, दैट इज योर न्यूक्लियोलस। एंड देन ये जो पूरा दिख रहा है वो दैट इज योर न्यूक्लियस। एंड गाइस हियर इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रेड दिख रहा है दैट इज योर आरियार्स। एंड लेट मी टेल यू दिस, ये जो आपको साइड में दिख रहा है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड हियर आर योर लाइसोसोम्स एंड दिस थिंग इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे आपके साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी सी डॉट्स दिख रहे हैं दैट इज योर साइटोप्लाज्म। एंड हियर इज योर एसईआर। आरईआर भी यहाँ पे है और एसईआर यहाँ पे, ठीक है। एंड गोल्गी बॉडीज ऑफ कोर्स थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती हैं वो। सो हियर आर योर गोल्गी बॉडीज। तो हम लोगों ने एक ही सेल को 3-4 बार डिटेल में समझा है, इसीलिए आप सेल ऑर्गेनेलास को भूलोगे नहीं, बिकॉज वी हैव स्टडीड ओनली, हम लोगों ने एनिमल सेल के बारे में कितने टाइम से पढ़ रहे हैं। आप
डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये लास्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन दोस सेल्स। सो हियर कम्स द डिफरेंस। तो ये देखो, ये है टिपिकल प्लांट सेल है, ये टिपिकल एनिमल सेल। टिपिकल मतलब ज़्यादातर जनरल में है, ठीक है, नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट, कि ये सिर्फ नीम ट्री का ही सेल है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डॉग्स का सेल है, ठीक है। टिपिकल मीन्स सबके लिए, जनरल में। नाउ गाइस, सेल के पास देखो, ये जो सेल है इनके पास एक सेल वॉल है, मतलब एक एक्स्ट्रा सेफ्टी, मतलब सेल मेम्ब्रेन दे ऑलरेडी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बट दे आल्सो हैव द सेल वॉल। प्लांट्स also have cell wall. Here there are their cell wall, and do you know, here are your endoplasmic reticulum, RER and SCR, basically the vacuoles. Vacuoles are used for storage, ठीक है। Let me tell you guys vacuoles क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग भूल नहीं सकते, ठीक है। vacuoles, तो vacuoles होता है ना, वो आपकी स्टोरेज में आपको हेल्प करते हैं, स्टोरेज, ठीक है, वो स्टोरेज में आपको हेल्प करते हैं, जो फूड होता है वो स्टोर रहता है। तो अमीबा, जब अमीबा prepares its foods, then it is stored in your vacuoles only, and then it is digested and absorbed by the body, ठीक है। तो vacuoles plants में ना, यहाँ पे देखो प्लांट्स के वैक्यूल्स इतने बड़े बड़े, एनिमल्स में थोड़े थोड़े छोटे वैक्यूल्स है ना। एंड हियर इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स में ना प्लास्टिड्स भी होते हैं। प्लास्टिड्स कौन से हो गए आपके, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये प्लास्टिड्स हो गए दो। जैसे एक और प्लास्टिक होता है, बट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा जो वेल नोन प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दैट हैज क्लोरोफिल इन इट। क्लोरोफिल प्लांट का क्लोरोप्लास्ट में होता है, दैट इज द रीजन व्हाई योर प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट हेल्प्स कैप्चरिंग द सनलाइट, ठीक है। आपके ये देखो वैक्यूल्स, बड़े बड़े जो वैक्यूल्स दिख रहे हैं ना, दैट आर योर वैक्यूल्स। एंड यहाँ पे आपका सी हियर आर योर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है, I'll just show it to you, ठीक है। ये आपको जो बीच में दिख रहा है दैट इज योर न्यूक्लियस। एंड गाइज लेट मी टेल यू दैट ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में है। अब ऐसे कोई चीज़ है जो ऐसे सिर्फ एनिमल सेल्स में है, तो ऑफ कोर्स दैट मस्ट बी समथिंग, ठीक है। सो अभी तो इतना डिटेल में वी डू नॉट हैव टू स्टडी प्लांट एंड एनिमल सेल, बिकॉज वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट द बेसिक्स। सो गाइज लेट मी टेल यू, okay, what has happened to this slide? Okay, just a second and I'll sort this problem out. Discord. Yeah guys, sorry for that interruption, but of course let me tell you guys, if you have enjoyed the video, so please do share this video. This picture was not coming for just a second, I had done the work. So if you have enjoyed the video, please do share this video with everyone you want, everyone who needs, because इसमें हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में समझा है। Of course we have taken more than half an hour, but of course we have already learned this chapter, पूरा डिटेल में समझा है। एक एक पॉइंट को I have kept repeating so that वो आपके कानों में घुस जाए, it never comes out, ठीक है, because this is a very important chapter। और ये इतना लंबा चैप्टर था, मतलब लंबा ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है, बट दैट वी हैव लर्न उसके हिसाब से लंबा चला गया। सो गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट आ रही है ना चैप्टर में, इवन अ स्मॉल डाउट दैट अराइव्स इन योर माइंड आउट ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज डू टेल मी द डाउट सॉल्विंग फॉर्म प्रोवाइडेड बिलो, क्योंकि डाउट सॉल्विंग फॉर्म में मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी गाइज, आई विल जस्ट सॉल्व इट आउट। एंड आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज डू हिट लाइक एंड टेल मी दैट आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। सो फॉर दिस लेट मी एम मोर देन 10 लाइक्स यार, ऐसा नहीं चलता है, आई वॉन्ट मोर देन 10 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। एंड फॉलो मी, how can you follow me? Through subscribing to my channel and commenting me down below. Please do click on the notification bell so that you get notified each time I upload a new video. And guys, let me tell you that this was it for today. I hope you guys have enjoyed the video. Already we had spent half an hour together, you and me, and now it's time to leave. So bye guys.